attendance of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining us today's session. I'm Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about online capabilities in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's take introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations, and development. So first we deal with Tally Prime. Second, SAP Business One. Third is BTX 24, and fourth is Skill India. So now speakers are available here. So presentations will be conducted by Ms. Priyanka, and live demonstrations will be done by Mrs. Sonali. And as usual, the over recap will be the Mr. Bhagwati Prasad Tandaria. So Priyanka, are you here? Yes, ma'am. Yes. Welcome, Priyanka. Thank you for joining. Thank you. Mrs. Sonali? Yes, ma'am. Yeah. Thank you, Sonali. Welcome to the webinar. And Bhagwati sir, are you here? Yes, I am available over here. Hi. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you for joining. Yes, so Priyanka, go with your presentations and over to you. Yes, ma'am. Thank you. Hello, good evening, everyone. Myself, Priyanka Prajapati, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is a family of whole RSPL. Now, today we will discuss one of the most important features of Tally Prime, that is online capabilities in Tally. While using these features, you can access your Tally anywhere. So let's start with introduction of online capabilities in Tally Prime. Tally Prime gives you the flexibility to work from home or anywhere with connected services in Tally Prime. You can access your company data from anywhere and rest assured your data is secure. ऑनलाइन कैपेबिलिटीज के थ्रू आप Tally Prime फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विद कनेक्टेड सर्विसेज इन Tally Prime. ऑल्सो आप अपना डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड योर डेटा विल बी सिक्योर्ड. Here are some features that is based on your need. First one is Tally Virtual User. You can use Tally Prime Virtual User to access Tally over a virtual environment through technologies like Windows, RDP, etc. Next one is Remote Access. Remote Access help you to record and alter your transactions, view reports, and print vouchers and reports. Next is Browser Access. To view reports, print vouchers from any device you can use. Emailing a report, you can email reports, invoice, purchase order, reminder letter, and so on. Now in the next slide, we can see importance of remote access. Login into Tally Prime from anywhere. You can securely access your Tally Prime from anywhere to record transactions or view reports or other locations. In a Tally Prime, आप आपका remote access कहीं से भी securely access कर सकते हैं, as well as आपके transactions record कर सकते हैं, reports view कर सकते हैं from any location. Some key features required to use remote access. That is, all you need to the remote location is license install and internet connection. Remote access setup के लिए Tally Prime installation होना जरूरी है. Also, internet connection proper होना चाहिए. Second one is an active and valid TSS. Remote access use करने के लिए आपका TSS valid होना necessary है. Next one is in your office you need to have a valid license and your company connected to Tally.net services. Server and remote system must have the same release. रिमोट एक्सेस यूज करने के लिए आपके ऑफिस में Tally Prime लाइसेंस होना नेसेसरी है एंड आपकी जो कंपनी है वह Tally.net सर्विसेज से कनेक्ट होनी चाहिए एंड द सर्वर एंड रिमोट सिस्टम मस्ट हैव द सेम रिलीज. नाउ वी कैन सी हाउ टू व्यू Tally Prime report through browser. You can allow many users to view Tally Prime reports in browser. Select the security as a Tally.net owner, Tally.net user, or Tally.net auditor. You can also create security level if needed. With the help of browser, different user Tally Prime की report view कर सकते हैं. Then
आप वहाँ सिक्योरिटी लेवल सिलेक्ट करना है एज अ tally.net ओनर, tally.net यूजर और tally.net ऑडिटर के थ्रू। सिक्योरिटी लेवल भी वहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। Some important points are given here, which are included in online capability. That is, anywhere, any device. You can assure access Tally Prime from anywhere using any device as a laptop, smartphone, tablets, and so on. Security and control. You have a complete control on who views the report and who will access your data. Download reports and invoice. You can open a report and download it in a PDF or Excel format and also download invoice and vouchers. Last one is easy setup. Connect your company, allow your user to view reports using a browser from anywhere with a valid tally.net ID. Now we will see the emailing part in a report through Tally Prime. With Tally Prime, you can not only store your business data but also share it with desired audience. Your business data will be saved in the form of master and transaction and tracked in the form of report. You can easily email the required invoice and report. Tally Prime के थ्रू आप बिजनेस डेटा स्टोर कर सकते हैं एज वेल एज डिजायर ऑडियंस के साथ पर्टिकुलर डेटा शेयर कर सकते हैं। आपका Tally Prime का डेटा सेफ रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मास्टर एंड इट विल बी ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। You can easily email the required invoice and report. So these are some important information about online capabilities of Tally Prime. It's over from my side. Thank you so much. Thank you so much, Priyanka ma'am. Nice presentation from you. Myself is Sonali. I am representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. I am here to present live demo of online capabilities in Tally Prime. So आज हम देखेंगे ऑनलाइन कैपेबिलिटी इन टैली प्राइम। तो उसमें हम आज 3 टॉपिक्स देखेंगे, रिमोट एक्सेस एंड ब्राउजर एक्सेस इन टैली प्राइम, एंड सेकेंड हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा ईमेलिंग रिपोर्ट्स एंड इनवाइस। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिमोट एक्सेस इन टैली प्राइम। रिमोट एक्सेस टैली प्राइम में यूज करने के लिए हमें टैली में से कुछ फीचर्स को यहाँ पे एनेबल करना जरूरी है। सो हम फर्स्ट जाते हैं कंपनी में, वहां से हमें फीचर्स में जाना है, उसका शॉर्टकट है F11। यहाँ पे हमें ऑनलाइन एक्सेस में एनेबल tally.net सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये ऑप्शन को हमें यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले यस कर दिया है, यहाँ पे आपको पूछेगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यहाँ पे आपको यस करना है। देन इसके बाद आपको यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड देन आपको यहाँ पे सेव करना है। ये सेव करने हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी यूजर रोल्स की। रिमोट एक्सेस के लिए हमें रिमोट एक्सेस के लिए tally.net का रजिस्टर ईमेल आईडी मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे tally.net यूजर्स में, देन हम यहाँ पे tally.net यूजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन रहेगा अलो कंपनी टू कनेक्ट, एंड हमारा यहाँ पे ये एक ऑप्शन ये है यूज tally.net ऑथेंटिकेशन। तो ये दोनों भी ऑप्शन हमें रिमोट एक्सेस के लिए यहाँ पे एनेबल रहना जरूरी है। सो अगर यहाँ पे आप रिमोट एक्सेस में ऐसे यूजर्स को भी मतलब मिनिमम कुछ राइट्स भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, फुल एक्सेस दे रहे, तो यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे सेव करेंगे। रिमोट एक्सेस के लिए जो अपने को एनेबल फीचर चाहिए वो यहाँ पे अभी हो गए। सेकेंड हमारा स्टेप रहेगा यूजर्स एंड पासवर्ड। यूजर्स एंड पासवर्ड में यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है tally.net यूजर, देन हमारा रजिस्टर जो ईमेल आईडी है टैली का यहाँ पे वो हमें डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेकेंड हमें यहाँ पे एक्सेस किस लिए करना है, अलो रिमोट एक्सेस, देन मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ये सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा रिमोट एक्सेस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन हम यहाँ पे करेंगे कंपनी कनेक्ट। कंपनी कनेक्ट करने के बाद ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। कंपनी कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो
सिंबल दिखाई देगा कनेक्टिविटी का, ये हमारी कंपनी कनेक्ट हो गई। देन हम रिमोट एक्सेस के लिए सेकेंड टैली ओपन करेंगे, जो कि आपके सेकेंड पीसी पे रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम ड्राइव। रिमोट एक्सेस के लिए हमें यूज करना है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। यहाँ पे मैं मेरा tally.net का जो आईडी वो डाल देती हूँ। अगर आपको tally.net का पासवर्ड याद नहीं से आप वो रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अपन फर्स्ट सर्वर से कंपनी कनेक्ट करी थी अपनी ये कंपनी, तो हमें रिमोट एक्सेस पे यहाँ पे वो कंपनी ऑनलाइन में शो दिखाई देंगी। तो ये है अपनी कंपनी, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे रिमोट एक्सेस के लिए वो कंपनी लोड हो रही है। ये कंपनी यहाँ पे हमें कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे अपने आपको दिखेगा रिमोट यूजर डिटेल्स। यहाँ पे आपका रिमोट आईडी, आपका लॉगिन टाइमिंग या एंड लास्ट लॉगिन टाइम एंड ड्यूरेशन। सो इसमें हम एंट्री लेवल पे, विविंग लेवल पे जो एक्सेस सर्वर पे करते हैं वही एक्सेस आप रिमोट एक्सेस में भी कर सकते हैं। हम देखेंगे अभी वाउचर लेवल पे जाके एंट्री लेवल में क्या होता है। यहाँ पे एंट्री करने के बाद, रिमोट एक्सेस में एंट्री करने के बाद आपकी जो एंट्री है वो सर्वर डेटा पे भी सेव रहेंगी। सो यहाँ पे मैं एंट्री कर देती हूँ एक, जैसे मेरी ये पार्टी है। ये डिटेल्स नहीं फिलअप करी, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ये सेल्स का एक लेजर ले लिया। मैं पेमेंट की एंट्री कर देती हूँ। यहाँ पे लेती हूँ कैश। ये पार्टी को हम करेंगे पेमेंट। फिर आ जाएगा ऑन अकाउंट। ये एंट्री यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ। जैसे कि रिमोट एक्सेस में आप जो भी यूजेस करेंगे, मतलब एंट्री लेवल पे या अल्टर लेवल पे जो भी आप चेंजेस यहाँ पे करेंगे, जो भी वर्किंग करेंगे, वो पूरा वर्किंग हमें यहाँ पे अपने सर्वर डेटा पे दिखाई देगा। जस्ट हमने अभी जो एंट्री करी थी यहाँ पे हम सर्वर डेटा पे चेक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने जो पेमेंट की एंट्री करी थी 1000 रुपीज की आशुतोष इंडस्ट्रीज की, यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। इस तरह से टैली प्राइम में हम रिमोट एक्सेस यूज कर सकते हैं। सो अपना ये रिमोट एक्सेस का टॉपिक्स जो है यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ। ब्राउजर एक्सेस के लिए हमें tally.net का आईडी यूज नहीं करना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना सेकंड जो स्टैंडर्ड यूजर। स्टैंडर्ड यूजर हमें यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमें जाना है पोर्टल पे। पोर्टल पे जाने के लिए हमें गूगल में जाना है, tallysolutions.com यहाँ पे एंटर करना है। देन अपना tally.net का जो आईडी है, जो रजिस्टर ईमेल आईडी, वो हम यहाँ पे डालेंगे। देन यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे एंड लॉग इन करेंगे। ये हमें ब्राउजर एक्सेस के लिए ओपन करना है। ब्राउजर एक्सेस के लिए ओपन करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल सेंटर में। देन हमारा सेकंड ऑप्शन है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में जाने के बाद मैनेज यूजर्स। मैनेज यूजर्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें करना है क्रिएट यूजर्स। क्रिएट यूजर्स में यहाँ हम जाएंगे स्टैंडर्ड यूजर, क्योंकि हमारा ओनर जो है वो हमारा रजिस्टर ईमेल आईडी रहता है tally.net का। देन हम यहाँ पे डालेंगे आपको जो स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट करना है वो।
जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ईमेल आईडी डाल दिया, इसको मैं एनेबल कर देती हूँ, एनेबल tally.net सर्विस। यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट रहेगा वहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है प्राइमरी टैली प्राइम सिल्वर। देन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और क्रिएट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट कर दिया है, ये मेरा स्टैंडर्ड यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो ब्राउजर एक्सेस के लिए अब हम जाते हैं अपने टैली में। टैली में जाने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट तो हमारी ब्राउजर एक्सेस के लिए प्रोसेस ये रहेंगी, हम फीचर्स में जाएंगे कंपनी में जाने के बाद। देन यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस में हमारा ऑप्शन है ब्राउजर एक्सेस, इसको हम यस करेंगे। देन हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा सेकंड एक ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी लेवल का। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे हमें करना है ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस, जो कि हमने अभी बनाया था जो स्टैंडर्ड यूजर का। यहाँ पे वो ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाता है, यहाँ पे वो आईडी हम सिलेक्ट करेंगे। देन इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको फिर शो होगा यूजर्स एंड पासवर्ड में जाके ये ऑप्शन को आपको यस करना है, अलो ब्राउजर एक्सेस। ये हम यस कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले कर दिया था। यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ। देन यहाँ पे अपना रिमोट एक्सेस शुरू था, कंपनी कनेक्ट थी। मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, फिर से कनेक्ट कर देती हूँ ब्राउजर एक्सेस के लिए। ये हो गई हमारी कंपनी कनेक्ट फॉर ब्राउजर एक्सेस के लिए। और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कनेक्टिविटी स्टेटस में, जो कि हमने कनेक्ट किस लिए किया है, ब्राउजर एक्सेस के लिए और tally.net सर्विस के लिए। सो हम देखेंगे अभी ब्राउजर एक्सेस आप मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं, जो कि हमें जाना है गूगल पे अपने कस्टमर आईडी से हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे tallysolutions.com। देन हम लॉगिन करेंगे अपने स्टैंडर्ड यूजर से, स्टैंडर्ड यूजर जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, और उसका पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो कंपनी हमने टैली में से कनेक्ट करी थी, अपनी ये कंपनी है प्रणव कोटिन, जो कंपनी हमने यहाँ से कनेक्ट करी थी वो कंपनी हमें यहाँ पे पोर्टल पे दिखाई देंगी। देन हम उसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद टैली में जो भी फीचर्स है, जैसे कि अपना बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डे बुक है, लेजर्स वाउचर है, जो अपने रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे कि अगर पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ पे पीरियड चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीरियड चेंज कर दिया। सेकंड, अगर कुछ आपको डाउनलोड करना है तो आप इसमें से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि हम डाउनलोड करेंगे एक्सेल में। एंड देन सेकंड है हमारा पीडीएफ। सो मैं अभी क्या कर देती हूँ, एक इनवाइस है, इनवाइस ओपन कर देती हूँ। इनवाइस ओपन करने के बाद मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, मैं डाउनलोड कर देती हूँ पीडीएफ में। पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद हमें इस तरह से हमारा जो वाउचर्स है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ये रहा हमारा वाउचर सेल इनवाइस। इस तरह से आप मोबाइल में ब्राउजर एक्सेस ओपन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं इनवाइस, या कुछ अगर कुछ आपको लेजर स्टेटमेंट सेंड करना है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अगर सेंड करना है तो आप ब्राउजर एक्सेस से सेंड कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा चेंज रिपोर्ट का। चेंज रिपोर्ट में आप जाएंगे तो आपको जो भी मतलब रिपोर्ट्स पे जाना है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने यहाँ पे एक ऑप्शन दे वाला है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये अपना ब्राउजर एक्सेस में पूरा आपको एक्सेस मिल जाता है ऑन मोबाइल पे। देन यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आपको एक बता देती, जैसे कि कंट्रोल सेंटर में आप जाएंगे तो आपको ब्राउजर एक्सेस की हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे कि अपना आईडी कौन सा है, कंपनी नेम क्या है, अपने जो भी जितने भी कंपनीज यहाँ एड ऑन करी है वो कंपनी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। सीरियल नंबर, स्टार्ट टाइम एंड लास्ट यहाँ पे आपको शो होगा। सो इस तरह से आप टैली प्राइम में ब्राउजर एक्सेस भी यूज कर सकते हैं।
तो अपना ये सेकेंड टॉपिक जो है ब्राउजर एक्सेस का, मैं यहाँ पे वाइंड अप कर देती हूँ। अपना थर्ड टॉपिक है ईमेलिंग अ रिपोर्ट इन टैली, ईमेलिंग अ रिपोर्ट एंड इनवाइस। अगर कोई भी रिपोर्ट टैली में से अपने को मेल करना है सामने वाले क्लाइंट को, तो यहाँ से हम टैली में से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया है एक इनवाइस। ये इनवाइस में क्या कर देती हूँ, ओपन कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं मेल के लिए अल्टम शॉर्टकट कीज यूज करती हूँ। जैसे कि अभी मेरे सामने है सेल्स इनवाइस। बाय चांस अगर वर्किंग में क्या हो जाता है, मुझे अगर ऑर्डर कुछ लेजर स्टेटमेंट या कुछ इस जगह पे सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे जाके ईमेल में जाके ऑर्डर्स में जाके, मुझे अगर ऑर्डर कुछ स्टेटमेंट कस्टमर को सेंड करना है, लेजर वाइज हो या ऑर्डर सेल वाउचर हो या डे बुक में जाके कुछ करना है, या बिल्स रिसीवेबल पेबल कुछ भी रिपोर्ट्स हो, तो ऑर्डर्स में जाके भी मैं सेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे ईमेल में। फर्स्ट मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे है शो मोर हम करेंगे। यहाँ पे सीसी में अगर कुछ रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड मैसेज है। यहाँ पे आप मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज क्रिएट किया है। मैसेज नेम है मेरा टैक्स इनवाइस, देन मेरा मैसेज मैंने डाल दिया यहाँ पे पीडीएफ में, ये सेव कर देती हूँ। सेकेंड एक ऑप्शन है हमारा प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में जो आपने कंपनी में ईमेल आईडी जो डाला है, वो आईडी यहाँ पे आप वो आईडी से आप मेल कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर ईमेलिंग वाउचर। यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आपको अगर यहाँ पे सेट करना है कि मेल में कितने वाउचर्स मैंने सेंड करने चाहिए, जैसे कि सेल्स की कई बार 3 कॉपीज होती है, 2 कॉपीज होती है, कुछ डिलीवरी नोट की, सेल ऑर्डर कोटेशन, परचेस इनवाइस, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दे वाले शो प्रिंट कंट्री विथ एड्रेस। ये अगर आपको चाहिए तो आप इसको एनेबल करेंगे। देन आपको डेट रेंज रिपोर्ट चाहिए तो ये भी आप एनेबल कर सकते हैं। आपको जो रिपोर्ट्स चाहिए वो आप यहाँ पे दे वाली रिपोर्ट्स को आप एनेबल करके उसको मेल में ऐड कर सकते हैं। सो हम अभी मेल करेंगे। करंट मेल में मैं जाती हूँ, ये मेरा आईडी है। यहाँ पे लिस्ट कब आएंगी, जबकि आप लेजर में कस्टमर का ईमेल आईडी डालेंगे, तब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी की लिस्ट शो होंगी। जैसे कि मैंने ये लेजर में ईमेल आईडी पहले से ही डाले वाला था, तो मुझे ये आईडी यहाँ पे शो हो गई। देन मैं इसको क्या करूंगी, एंटर करती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो आप मैसेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। अभी देखिए कॉन्फ़िगरेशन में मैं जा रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप शो मोर में जाते हो, तो शो मोर में इतने सारे ऑप्शंस है, जैसे कि बिल वाइज डिटेल्स है, बैच वाइज है। आपको जीएसटी कॉलम उसमें ऐड ऑन चाहिए, जैसे कि पहले नहीं था। शो पेज नंबर या वहाँ पे शो होना चाहिए, या बैंक डिटेल्स वहाँ पे ऐड नहीं है, आप फिर मेल में जाके वहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ से आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। आप जो है ईमेल पीडीएफ में भी भेज सकते हैं। अगर कुछ रिपोर्ट एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सेल में भी भेज सकते हैं। यहाँ पे पूरे अपने को फीचर्स दिए वाले। देन मैं अभी करती हूँ आगे मेल सेंड। मेल सेंड करने के बाद टैली जब भी आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वन टाइम आपने यहाँ पे पासवर्ड अगर सेट कर दिया, तो जब आप टैली क्लोज करेंगे तभी आपका पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा। सो आप टैली जैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर पासवर्ड डाल दिया, तो आप जब तक टैली यूज कर रहे, क्लोज नहीं कर रहे, तब तक आप यहाँ पे वो पासवर्ड सेट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ही पासवर्ड डाला था, मैं एंटर कर देती हूँ। एक्सपोर्टिंग टू पीडीएफ। सो मेरा ये इनवाइस जो है कस्टमर को मेल हो रहा है। देन देखिए मैं इनवाइस में जाती हूँ। यहाँ पे है मेरा ईमेल आईडी। देखिए मैंने ये ईमेल आईडी जो है यहाँ पे मुझे सेंड हो जाएगा। मेरा दूसरा ईमेल आईडी था, वहां से मैंने सेंड किया था। ईमेल आईडी इस तरह से हमें अपने मेल में भी शो हो जाता है, हमने सेंड किया है और सामने कस्टमर को सेंड हुआ है। इस तरह से हम मेलिंग में ईमेल्स और रिपोर्ट कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ तक अपने ये 3 टॉपिक थे। अब मैं एंड अप कर देती हूँ। हेलो संपदा मैम, अपना ये Yes, जो yes. टॉपिक था यहाँ पे क्लियर हो गया मैम। Okay. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, Sonali. थैंक यू मैम। Okay. So now the over recap. So Bhagwati sir, over to you.
Yeah, thank you, Sampada and team. Hi guys, good evening. I'm Bhagwati from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So as usual, every Saturday we are doing the new topics and capability. We are trying to show you the capability of the Tally. It's always on demand. आपकी जो डिमांड होती है उसके बेस पे हायर प्रायोरिटी हम देखते हैं, किस टॉपिक्स पे ज्यादा डिमांड आ रही है उस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं अपकमिंग सैटरडे को। तो इससे मैं ये आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक आपके दिमाग में है, आप हमारी कंपनी को जो मैसेज आपके चैटबॉट में अभी जूम के चैटबॉट में डाला हुआ है उस नंबरों पे आप कभी भी बात कर सकते हैं, या राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस हमारी कंपनी में आप जिससे भी कनेक्टेड है उनको आप बता सकते हैं कि मुझे ये इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो डेफिनेटली वी विल अरेंज अ टॉपिक एंड अपकमिंग टाइम हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। इस अगेन ऑन डिमांड, जिसकी ज्यादा डिमांड है उसको प्रायोरिटी ली जाएगी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है ऑनलाइन कैपेबिलिटी ऑफ द टैली। नॉर्मली लोगों को, मैं नॉर्मली नहीं बोलूं, मोस्टली लोगों को यही मालूम है कि टैली एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। मैं भी बोलता हूं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर और काफी अच्छे फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम उसको ऑनलाइन यूज भी कर सकते हैं, जिसमें से आज हमने कुछ फीचर्स को यूज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने की ट्राई की है। क्योंकि हमारे पास काफी समय से ऐसी डिमांड आती है कि सर टैली ऑनलाइन यूज नहीं कर पाते हैं, टैली जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, टैली इज ए कंप्लीट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। यस एग्रीड, बट उसकी ऑनलाइन कैपेबिलिटी क्या है हम उसको आपको आज दिखा रहे हैं। आज की डेट में अगर आप आपके कंप्यूटर्स पे, आपके ऑफिस में आपके कंप्यूटर्स में टैली इंस्टॉल है और इंटरनेट इज ए वेरी कॉमन थिंग, सबके कंप्यूटर्स में इंटरनेट होता है, और उस कंप्यूटर में इंटरनेट अगर है तो आप टैली को ऑनलाइन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और यूनिक चीज इसमें क्या है, आरडीपी के थ्रू नॉर्मली आप किसी भी पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एनी डेस्क के थ्रू कर सकते हैं, टीम व्यूअर के थ्रू कर सकते हैं, बट उस समय सामने जो पीसी होता है, जिस पीसी को आप एक्सेस कर रहे होते हैं, उधर साइड में जो बंदा बैठा होता है वो काम नहीं कर सकता। लेकिन टैली के इस पर्टिकुलर फीचर में ऐसा नहीं है। आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, और साइमल्टेनियसली आपका बॉस, आपका दूसरा कलीग या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने लोकेशन से लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के थ्रू जो कॉन्फ़िगरेशन सेट हमने करके बताया था अभी, उस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सिर्फ आपको टैली को ऑनलाइन कनेक्ट करना अपने पीसी को, और वो टैली से ही टैली को रिमोट एक्सेस करेगा। एडवांटेज ये हो गया कि आप अपने पीसी पे अपना काम कर रहे हैं, दूसरे पीसी पे दूसरे लोकेशन में आपका कलीग, बॉस और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी अदर्स जिसको भी आपने एक्सेस करने को दिया है, या आपका सेल्स का पर्सन उसको यूज कर रहा है और स्मूथ यूज कर रहा है। सिंपल और सिंपल टैली रिमोट एक्सेस के थ्रू। उसके लिए पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। दोनों साइड में रिलीज सेम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और TSS वैलिड होना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल, नो एनी एडिशनल कॉस्ट, कुछ नहीं देना एडिशनल। एक बार कॉन्फ़िगर कर लीजिए, यूजर बना लीजिए और यूज करने को दे दीजिए। मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखूंगा। अगर मेरा सेल्समैन मार्केट में जा रहा है, मैं चाहता हूं मेरा सेल्समैन अपने लोकेशन से ही, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, कस्टमर्स के साइट पे, कस्टमर के पीसी से भी टैली को एक्सेस करके वहीं से ऑर्डर बुक कर दे। यस, दिस इज पॉसिबल। और मैं देना चाहता हूं मेरे सेल्समैन को सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट एक्सेस एंड सेल्स ऑर्डर बुकिंग एक्सेस, और रिसीट का पेमेंट इनकी वो पास कर ले। मैं जो देना चाहूं उतना एक्सेस उसको दे सकता हूं। तो टैली रिमोट एक्सेस का काफी वाइड एडवांटेज आप ले सकते हो, जो कि एक जस्ट लाइक ए हिडन फीचर है, लोगों को मालूम नहीं है, बट यू कैन कॉन्फ़िगर इट। वन टाइम का इम्प्लीमेंटेशन आपका होगा
और ये परमानेंट आप यूज कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन। तो आपको ये क्लियरिटी तो आ गई होगी कि आप इसका कितना वाइड लेवल पे एडवांटेज ले पाएंगे, और भी बहुत से आइडियाज हो सकते हैं आपके जिसको रिमोट एक्सेस को यूज कर पाएंगे। अब मैं आता हूं दूसरा फीचर जिसमें हम बात कर रहे थे, ब्राउजर के थ्रू मार्केट में जो डिसीजन मेकर है, आपके जो डायरेक्टर्स, ओनर्स, सीईओ, सीएफओ, वो कभी भी टैली खोल के नहीं देखेंगे। 99% नॉर्मल केस में किसी भी बड़ी कंपनी में और मिड स्केल में भी, स्मॉल स्केल में भी, ऑनर के पास इतना टाइम नहीं होता। वो चाहता है यार मैं मोबाइल पे ही मैं देख लूं मेरा डेटा कितना आउटस्टैंडिंग है, किसको फोन करना चाहिए, किससे पैसे लेने हैं, क्या स्टॉक है, कौन सा ऑर्डर माल मंगाना है मुझे, कौन सा स्टॉक मेरा कम रहा है, या मेरा बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, मेरा बैलेंस शीट की प्रॉफिट लॉस पोजीशन क्या है, या मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है। वेरियस टाइप ऑफ द रिपोर्ट मैं देखना चाहता हूं एज ए ओनर, और मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर को उसका आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट कि तुम्हारा इतना रुपया बाकी है, दिस इज ओवर ड्यू, प्लीज क्लियर इट। अपने ब्राउजर, अपने मोबाइल ऐप में ही, मोबाइल में ही ब्राउजर के थ्रू वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट शेयर कर सकता है ऑन व्हाट्सएप, ऑन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। नो नीड टू एक्सपर्टीज एनी अदर टाइप ऑफ द एक्सपर्टीज, कि कुछ और सीखने के लिए नहीं जाना है ऑनर को। सिंपल लॉगिन करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने दिखा दिया। सिंपल लॉगिन करना है ब्राउजर में और यूज करना है, और यू कैन सेव योर टाइम, मनी, एंड यू कैन क्रिएट मोर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दूंगा। आज आपका सेल्समैन मार्केट में जाता है, सेल्समैन के पास दो चीज कॉमन होती है, एक तो उसको ऑर्डर बुकिंग करना होता है, दूसरा उसको आउटस्टैंडिंग का पेमेंट लेना होता है। मोटा मोटा ये रिक्वायरमेंट हमेशा हर आदमी की, हर कंपनी की है जहां भी मार्केट में जाके सेल्समैन ऑर्डर लेता है। उसका लॉगिन आईडी बना दीजिए, ब्राउजर एक्सेस दे दीजिए, क्यों उसके पास लैपटॉप नहीं हो सकता है उसके बाद, लेकिन मोबाइल जरूर होता है। उस केस में बंदा अपने मोबाइल पे ब्राउजर के थ्रू टैली खोलेगा, ब्राउजर में अपना लॉगिन करेगा, वहां जब ऑर्डर लेगा तो उसमें वो लाइव स्टॉक देख पाएगा कि उसके पास टैली में आज ऑफिस में कितना स्टॉक है। आज मान लीजिए सुबह कोई एक आइटम आपके पास 1000 केस थी, दिन में 200 केस बिक गए। आपने मॉर्निंग में, करंट सिनेरियो में क्या होता है, आपने करंट स्टॉक दे दिया सेल्समैन को, आपके पास 10 सेल्समैन है, हर एक सेल्समैन वही स्टॉक को पैरामीटर मान के ऑर्डर बुकिंग करता है। शाम तक मालूम होता है 1000 केस थे आपके पास, 1500 केस के ऑर्डर आ गया। यू आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन कि किसे माल दूं और किसे नहीं दूं। अगर नहीं देते हो तो कस्टमर नाराज होता है, और देने के लिए आपके पास है नहीं। कम देते हो तो वैसे कमिटमेंट आपके बंदे ने किया है वो फेल हो रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ये कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है बिजनेस में। उस केस में अगर ब्राउजर के थ्रू सेल्समैन स्टॉक देख लेवे, लाइव उसको पता रहे कितना स्टॉक है, बट नेचुरल वो वही बुकिंग करेगा। जितना पीछे बुकिंग हो चुका है वो वहां नहीं दिखाई देगा, लेटेस्ट स्टॉक ही उसके ब्राउजर में दिखाई दे रहा है, उतना ही वो ऑर्डर लेगा और अपने ऑफिस में व्हाट्सएप कर देगा, बैक ऑफिस उसको ऑर्डर बुक कर लेगा। तो कहीं भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग पे। सेल्समैन जब कस्टमर से बात करता है या डीलर से बात करता है आपने कि इतना आउटस्टैंडिंग है और आपको ये पेमेंट देनी है, कई बार कस्टमर बोलता है कि मेरे पास तो अभी ये इनवॉइस आया ही नहीं, इतना आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया। तो उस केस में आज के करंट सिनेरियो में लोग ऑफिस में फोन करके बोलते हैं उसको हम इस डीलर का इनवॉइस भेजो, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट भेजो। लेकिन ब्राउजर सिनेरियो में सेल्समैन अपने मोबाइल से ही इनवॉइस उसको व्हाट्सएप करेगा और अपने मोबाइल से उसको आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट व्हाट्सएप कर देगा। लाइव एट ए टाइम
एंड फिर वो पेमेंट की डिमांड कर सकता है। दे कैन डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट एंड क्लियर इट आउट। तो आपका काम कितना आसान हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, क्लियरिटी हो जाती है बिजनेस में, इफिशिएंसी लोगों की बढ़ जाती है, और डिपेंडेंसी लोगों की एक दूसरे के ऊपर से खत्म हो जाती है। तो इससे आपका बिजनेस बहुत स्मूथ रनिंग हो सकता है। ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। कॉमन बातें हैं आज की डेट में, ईमेल कैपेबिलिटी हर एक सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। आज हम कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें रिपोर्ट प्रिंट करके पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से अगर हमें ईमेल में अटैच करना पड़े तो एक ईमेल को करने में हमें 5 मिनट मिनिमम जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, अगर आपके टैली में कहीं कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट में जाना है, जो पीरियड का आपको रिपोर्ट उसको भेजना है, पीरियड का रिपोर्ट भेजिए और एक क्लिक कीजिए ईमेल पर। डायरेक्टली जो ईमेल आईडी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उस ईमेल आईडी से, और जो ईमेल आईडी कस्टमर का आपने डाला है मास्टर में, उस ईमेल आईडी पर एक सिंगल क्लिक पे वो पर्टिकुलर रिपोर्ट कस्टमर को चली जाती है। और आपने जो भी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसके सेंड बॉक्स में आपको ईमेल दिखेगा जो आपने भेजा है, कस्टमर के इनबॉक्स में वो मेल दिखेगा जो उसको मिला है। इससे आपका टाइम और इफिशिएंसी काफी सेविंग हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, एवरी मंथ बहुत सी कंपनियां हैं जो कंफर्मेशन लेटर भेजती है कि आपका आउटस्टैंडिंग कंफर्मेशन लेटर एवरी मंथ हम भेजते हैं। आपके पास मल्टीपल लेजर के मल्टीपल कंफर्मेशन लेटर ऑन सिंगल वन क्लिक भेज सकते हैं। अगर आपके पास 1000 लेजर्स भी हैं तो आप एक सिंगल क्लिक पे भेज सकते हैं। भेजने में जो टाइम आपका जाएगा, ड्यूरेशन, दैट्स ओके, बट आप सिंगल क्लिक पे टैली से आप मेल भेज सकते हैं, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट भेज सकते हैं, कलेक्शन, ओवरड्यू कलेक्शन भेज सकते हैं, इनवॉइस भेज सकते हैं। वेरियस थिंग्स यू कैन डू इन द सिंगल वन क्लिक थ्रू आउट द टैली प्राइम। इससे आपके बिजनेस में आपके कस्टमर, आपके डीलर और आपके सेल्समैन सबके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी आती है, क्लियरिटी आती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, टाइम सेविंग होती है, इफिशिएंसी आपकी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लोगों की, और बिजनेस आप और ज्यादा स्मूथ कर पाएंगे। दिस इज ओवरऑल आइडिया एंड बट नेचुरल मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ब्राउजर के थ्रू ऑनर कैन मेक अ डिसीजन ऑन द फिंगर सिंगल क्लिक एंड इंस्टेंट बेसिस। तो आपका बिजनेस और ज्यादा स्मूथर एंड ऑन टाइम हो सकता है। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टैली प्राइम ऑनलाइन कैपेबिलिटीज, जिसको आप यूज करके आप बहुत से एडवांटेज ले सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द टुडे अबाउट दिस टॉपिक्स। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगा कि हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। टैली में हमने काफी कस्टमाइजेशन किए हुए हैं, टैली में काफी चीजों का आप कॉन्फ़िगरेशन हमसे करवा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक वीडियोस, हर एक टॉपिक्स, हर एक डिस्कशंस हमारे हर एक टॉपिक्स के आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक हमारे जूम में अभी हमने डाला हुआ है, जिसको आप अभी इमीडिएट अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको यू कैन गेट द एडवांटेज और अपडेटेड अपकमिंग जितने भी नए लेक्चर्स, टॉपिक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं वो सब वहाँ आपको मिलेंगे, क्योंकि आफ्टर दिस मीटिंग ये लिंक आपको नहीं एक्सेस होगा। नंबर सेकंड थिंग्स मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आप हमारे जो भी अकाउंट मैनेजर से आप कनेक्टेड हैं उनके साथ डिस्कशन कीजिए, आप एडवांटेज लीजिए प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी का। इसके साथ साथ हमारे टाइम टू टाइम बहुत से ऑफर आते रहते हैं। जैसे अभी हमारा एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। टैली license is a one subject, data is always matter for us, data is more important than the tally license। तो आज हमारा डेटा, हम कई बार बैकअप लेना भूल जाते हैं, ऑटो बैकअप हमने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है जो आपको काफी सेफ एंड सिक्योर करेगा। आपके डेटा आपके प्री डिफाइंड पाथ पे लेके जाएगा, आपको डेटा बैकअप लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप टैली में एंट्री करके टैली बंद करोगे ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा और आपको पीसफुल लाइफ हो जाएगी। आप इस ऑटो बैकअप की फैसिलिटीज को
आप अपने अकाउंट मैनेजर जो राजलक्ष्मी से आपके साथ कनेक्टेड है और हमारे चैट बॉक्स में जो नंबर अभी डाले हैं कनेक्ट कीजिए और इसका एडवांटेज लीजिए। देयर इज ए गुड नंबर्स ऑफ द डिस्काउंट नियर बाई 40%, दिस इज अ बिग डिस्काउंट। इसके अलावा भी आप टैली को क्लाउड पे यूज कर सकते हैं। देयर इज अगेन अ बिग ऑफर ऑन द टैली क्लाउड। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इतने फीचर टैली में जिसको एक्सप्लोर करना एक दिन का काम नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ द प्लान है जिसका एडवांटेज ले सकते हैं। आप अपने टैली में आप अपने इनवॉइस को अपने मन के मुताबिक डिजाइन करवा सकते हैं, रिपोर्ट्स अपने मन के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। ये सभी चीजों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़े ERPs लाइक SAP बिजनेस वन है। इसके अलावा प्री सेल्स मैनेजमेंट, CRM मार्केटिंग वगैरह के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे पास CRMs हैं, बिट्रिक्स CRMs, जहाँ पर काफी अच्छे ऑफर्स होते हैं टाइम टू टाइम। आप अपने कम्युनिकेशंस, कोलैबोरेशंस, एफिशिएंसी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट सब उस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ओवरऑल आइडिया फ्रॉम द राज्यलक्ष्मी कि हम आपको कैसे आप हमारे साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं। दिस इज ओवरऑल आइडिया एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड डाउट तो यू कैन पुट इन द माय चैट, तो हम आपको यहाँ पर लाइव आंसर आपको देंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज रेज द हैंड and put your question in the chat box. मुझे मिस्टर साई की तरफ से एडवाइस मिला है, यू वांट टू नो अबाउट द इन्वेंटरी। या डेफिनेटली आप हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर साई आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर इन्वेंटरी रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिलेंगे, आप उसको भी देखिए। और डेफिनेटली हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, हम इसको कंसीडर जरूर करेंगे। लेकिन इन्वेंटरी के वीडियोस से जो हमने ऑलरेडी काफी कर चुके हैं वो आपके काफी काम के हैं। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसका एडवांटेज लीजिए। So I think Sambara is there is not any question from the audience side. So it's Yes, time to wind up the sessions. So it's over to you. Yes, sir. Thank you, sir, for your valuable time. And thank you all of you who attend the webinar. And thank you so much for your attendance and thank you so much for joining us. This session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our YouTube and social media channels and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So now we are wind up this session. So see you in the next webinar. Thank you very much. Thank you, everyone. See you in next session.